हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के चैप्टर द वर्जर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी है तो उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है हु रोट द चैप्टर द वर्जर। जो चैप्टर द वर्जर है इसके राइटर का नाम क्या है? आंसर, विलियम सॉमरसेट मॉगम इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द वर्जर। तो हमारे चैप्टर द वर्जर के राइटर का नाम है विलियम सॉमरसेट मॉगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द ऑथर वाज बोर्न एंड डाइड। हमारे ऑथर का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई? आंसर, द ऑथर वाज बोर्न ऑन 25th जनवरी 1874 एंड डाइड ऑन 16th December 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज विलियम सॉमरसेट मॉगम। Answer, William Somerset Maugham was one of the most popular British writers of the early 20th century. He authored several plays, novels and short stories. Though he began his career as a physician, but he gave up the profession and became a popular writer. तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ये उतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Name the first novel of William Somerset Maugham along with its publishing year. The first novel of William Somerset Maugham was Lisa of Lambeth, published in the year 1897. Next question है what job had William Somerset Maugham been undergoing during the First World War? Answer, William Somerset Maugham was in service with the Red Cross during the First World War and was subsequently recruited by the British Secret Intelligence Service in 1916. Next question है name the countries where William Somerset Maugham had been at work in 1917. Answer है in Switzerland and Russia. Next question number 7. Name the masterpiece of William Somerset Maugham. Answer, the masterpiece of William Somerset Maugham is of human bondage and it was published in the year 1915. Question number 8 है name some remarkable works of Maugham. So the answer is the most remarkable works of Maugham are The Moon and Sixpence, which was written in the year 1919, Cakes and Ale 1930, The Razor's Edge, that is written in 1944. Next question है question number 9. Name some collections of short stories by William Somerset Maugham. Answer, Orientations 1899, Ashendon 1928, The Book Bag 1932 and The Mixture as Before, that is written in 1940. Next question है name the famous work that is a token of his acknowledgement. Answer, The Summing Up, which is written in 1938, is the famous work that is a token of his acknowledgement. Question number 11. What was the name of the verger at St. Peter's Church? यहाँ से हमारे important questions शुरू होते हैं। तो वर्जर का नाम क्या था जो सेंट पीटर चर्च में काम करता था? तो उस वर्जर का नाम था एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन was the name of the verger at St. Peter's Church. Question number 12. Where was it located? वो जो चर्च था जिसका नाम सेंट पीटर चर्च था उसका लोकेशन मतलब वो कहाँ पर था? Answer, St. Peter's Church was located at Neville Square in London for aristocratic parishioners. Next है what did verger commonly wear? Answer, the verger commonly wore his regular gown, the second best one. तो वर्जर commonly मतलब usually वो क्या पहनता था? वो अपना second best gown पहनता था। What did the verger do with his new one? तो वर्जर जो न्यू गाउन्स होते थे उसके साथ वो कैसा ट्रीट करता था उन गाउन्स को? आंसर, द वर्जर केप्ट हिज न्यू वन, इट्स फोल्ड्स एज फुल एंड स्टिफ दो इट वेर मेड नॉट ऑफ एल्पेका बट ऑफ पेरेनियल ब्रॉन्ज फॉर फनरल्स एंड वेडिंग्स। तो वर्जर जो अपने न्यू गाउन्स थे उसको बहुत ही अच्छे से रखता था, उसको जो कि फुल और स्टिफ थे। दो इट वेर मेड नॉट ऑफ एल्पेका, वो एल्पेका नाम के मटेरियल से नहीं बने थे लेकिन वो पेरेनियल ब्रॉन्ज के मटेरियल से बने थे और उनको वो सिर्फ फनरल्स और वेडिंग्स में ही पहना करता था। क्वेश्चन नंबर 15. What type of people come to St. Peter's Neville Square? Answer, St. Peter's Neville Square was a church much favored by fashionable. Next question है what did the verger feel when he wear the gown? वर्जर को कैसा महसूस होता था जब वो अपना गाउन पहनता था? आंसर, द वर्जर वोर द गाउन विद कॉम्प्लिसेंस फॉर इट वॉज द डिग्निफाइड सिंबल ऑफ हिज ऑफिस एंड विदाउट इट ही हैड द डिस्कॉन्सर्टिंग सेंसेशन ऑफ बीइंग समवट इनसफिशिएंटली क्लैड। तो जो वर्जर था वो अपने गाउन को बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत रेस्पेक्ट के साथ पहना करता था क्योंकि उसका गाउन एक डिग्निफाइड सिंबल था उसके ऑफिस का।
and without it he had the disconcerting sensation of being somewhat insufficiently clad. और जब वो गाउन नहीं पहनता था तो उसको कुछ इनकम्प्लीट सा या इनसफिशिएंट सा फील होता था कि उसने इनकम्प्लीट ड्रेस किया है. He always pressed and ironed it by himself and wore a true respect from his heart. वो अपने आयरन को हमेशा खुद अपने जो वर्जर का जो गाउन था उसको हमेशा खुद आयरन किया करता था और उसको हमेशा एक बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ और पूरे दिल के साथ पहना करता था. क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन हैड बीन देयर वर्जर एट द चर्च ऑफ द चर्च. तो आंसर है फॉर द पास्ट 16 ईयर्स एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन हैड बीन द वर्जर ऑफ द चर्च. तो एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन उस चर्च में जो सेंट पीटर्स नेवल स्क्वायर नाम का जो चर्च था उस जगह पर वो पिछले 16 सालों से 16 ईयर्स से वो वहाँ पर वर्जर का जॉब कर रहा है उसी चर्च में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वर्जर डू विथ हिज वर्न आउट ड्रेस. तो जो वर्जर है वो अपने फटे हुए ड्रेसेस का क्या करता था, क्योंकि वो पिछले 16 सालों से काम करता था तो उसके कुछ ड्रेस फट भी जाया करते थे. तो वो उनके साथ क्या करता था, क्या वो उन्हें फेंक देता था या वो उनके साथ क्या करता था. आंसर, व्हेन द गाउन्स टर्न वर्न आउट द वर्जर डिड नॉट थ्रो देम ऑफ. इंस्टेड ही केप्ट द कंप्लीट सीरीज इन ए बॉटम ड्रॉयर्स ऑफ द वार्डरोब इन हिज बेडरूम बाय रैपिंग अप इन ब्राउन पेपर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्जर अपना जो गाउन्स जो फट जाते थे उनको वो फेंका नहीं करता था, बल्कि उसके जगह पर वो क्या करता था, उस पूरे कंप्लीट सीरीज को बॉटम ड्रॉयर जो था वार्डरोब का उसमें रख दिया करता था जो कि बेडरूम में था और उस सब सीरीज को ब्राउन कलर के पेपर से रैप करके रखा करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डिड द वर्जर बिजी हिमसेल्फ. वर्जर अपने आप को कैसे बिजी किया करता था, किन कामों में वो व्यस्त रहता था. आंसर, द वर्जर बिजीड हिमसेल्फ क्वाइटली रिप्लेसिंग द पेंटेड वुडन कवर ऑन द मार्बल फॉन्ट, टेकिंग अवे ए चेयर दैट हैड बीन ब्रॉट फॉर एन इनफर्म ओल्ड लेडी एंड वेटेड फॉर द विसार टू हैव फिनिश्ड इन द वेस्ट्री सो दैट ही कुड टाइडी अप इन देयर एंड गो होम. तो वर्जर जो पेंटेड वुडन कवर था उसको रिप्लेस करने में, फिर इसके बाद में एक चेयर जो कि बूढ़ी औरत के लिए लाई गई थी उसको जगह पर रखने में, और फिर काम खत्म करने के बाद वो विसार का वेट कर रहा था सो दैट ही कुड टाइडी अप इन देयर एंड गो होम, ताकि उसके बाद वो सब चीज़ सामान को साफ सुथरा रख दे, सही जगह पर रख दे और वो फिर घर जा सके. क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच ईयर द चैप्टर द वर्जर वॉज पब्लिश्ड. तो हमारा चैप्टर जो वर्जर है ये कब पब्लिश हुआ है. The chapter The Verger was first published in the year 1929 and was later included in a collection titled The Cosmopolitans, published in 1936. Question number 21. What does the chapter The Verger focus? Answer. The chapter The Verger describes the circumstances under which Albert Edward Foreman has lost his job and became a successful businessman. तो हमारा जो चैप्टर है वर्जर ये किस चीज़ के ऊपर प्राइमरीली फोकस करता है. तो आंसर, द चैप्टर द वर्जर डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन हैज लॉस्ट हिज जॉब. तो ये उन सर्कमस्टेंसेज, उन सिचुएशंस के बारे में बताता है जब एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन जो वर्जर था उसने अपना जॉब खो दिया था एंड बिकेम ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और उसके बाद वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट वाज द ओकेशन ऑन दैट पर्टिकुलर आफ्टरनून ऑन द लास्ट डे ऑफ वर्जर एट सेंट पीटर्स नेवल स्क्वायर. अच्छा, तो उस दिन क्या ओकेशन था, क्या स्पेशल ओकेशन था जिस दिन वर्जर का लास्ट डे भी था. तो आंसर, दे हैड बीन ए क्रिश्चियनिंग ऑन दैट आफ्टरनून. उस आफ्टरनून को क्रिश्चियनिंग था. क्रिश्चियनिंग मतलब कि नेमिंग सेरेमनी ऑफ ए क्रिश्चियन चाइल्ड, मतलब एक क्रिश्चियन बच्चे का नामकरण था उस दोपहर को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज वेस्ट्री. वेस्ट्री क्या होता है. आंसर, वेस्ट्री इज ए रूम इन ए चर्च वेयर सैक्रेड वेसल्स एंड वेस्टमेंट्स आर केप्ट एंड मीटिंग्स आर हेल्ड. वेस्ट्री एक रूम होता है चर्च में जहाँ पर जो सैक्रेड वेसल्स होते हैं, जो पौराणिक कुछ वेसल्स चीज़ें होती है वो वहाँ पर रखी हुई होती हैं, और वहाँ पर स्पेशली कुछ जो चर्च के रिलेटेड मीटिंग्स है वो उसी जगह पर होती है. तो दोस्तों, बाकी के क्वेश्चंस हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें.